क्या मैच था भाई, नहीं मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या ही मैच था भाई। एवरी टाइम यू टेक अ ब्रेथ भाई, एक गोल, दो गोल, तीन गोल, चार गोल, पांच गोल भाई। इट वाज डोमिनेशन, इट वाज ह्यूमिलिएशन बाय पीएसजी भाई। 5-0 इन द चैंपियंस लीग फाइनल अगेंस्ट इंटर मिलान यार। देखो इससे पहले मैं आगे पीएसजी की बात करूं, हम बैलन डोर की बात करें, हम इमोशंस की बात करें, आई टेक अ स्टेप बैक and talk about Inter Milan. I genuinely feel sad for Inter Milan, their fans, for Inzaghi because they had a wonderful season भाई। एक टाइम पे वो ट्रेबल जीतते हुए दिख रहे थे एंड दे एंडेड अप विद जीरो ट्रॉफीज, थोड़ा बॉटल हो गया, बट they had a beautiful season, especially the semi-finals of the Champions League. The way they defeated Barcelona and came to the finals by momentum उनके पास था. So I genuinely feel bad for them. मैं अगर imagine कर रहा हूँ, if I was an Inter Milan fan right now, I would have been crying, I would have been devastated. But still यार, hats off to this team, a very experienced team है ना भाई. तुम असर भी देख लो, बास्टोनी one of the best center backs in the world right now. I can feel for them and I wish them all the best for the future भाई. Again, Lautaro Martinez, utmost respect. Now coming to PSG भाई, this was a very good masterclass performance by Luis Enrique and his side. Before we go to the match भाई, let's talk about the emotions angle attached to it यार. मैच से पहले ही ना भाई तुमने टीफो देखा था. सो इट्स एन इमोशनल स्टोरी. लुइस एनरिके लॉस्ट हिज डॉटर ड्यू टू कैंसर एंड जब वो बार्सिलोना में लुइस एनरिके वन द चैंपियंस लीग, हर डॉटर प्लांटेड अ फ्लैग in the stadium, and yahi out of respect PSG fans planted that tifo, which was really emotional to see. And then of course PSG go on and do this kind of performance. Matlab it was like she was there watching and it was a very emotional thing. And yahi bola Luis Enrique ne that in spirit my daughter was here and she would have been really happy to see us winning the Champions League. तो ये सिर्फ एक फुटबॉल की बात नहीं रहेगी भाई. दिस बिकेम अ होलसम मोमेंट, इमोशंस अटैच हो गए. आई फेल्ट सो हैप्पी फॉर लुइस एनरिके एंड मतलब लिटरली बोलते बोलते ही आई एम ऑल्सो गेटिंग इमोशनल बिकॉज you can understand यार, he must have gone through a very tough time भाई, and to come back from there to fight it off भाई, utmost respect to Luis Enrique and my heartfelt congratulations for winning the Champions League. अब आते हैं भाई मैच की बात करने. मैच में भाई इट वॉज प्योर डोमिनेशन. देर वॉज वन टीम हु स्टेप्ड अप टुडे फ्रॉम द वर्ड गो. देखो प्लेइंग स्टाइल्स में हमने डिस्कस किया था यार कि जिस हिसाब से इंटर मिलान खेलती है, दे आर वेरी ओके टू सिट बैक एंड डिफेंड एंड कंट्रोल द गेम भाई. तो उनको कोई दिक्कत नहीं है अगर कोई दूसरी टीम, चाहे वो बार्सिलोना हो सेमीफाइनल्स में या पीएसजी जो फाइनल्स में हो, दे ब्रिंग ऑन द अटैक, दे एक्चुअली वांट द टीम्स टू कम एंड अटैक. और फिर जब पीएसजी अपनी एक हाई लाइन खेल ले तो वहाँ से वो अपना आई वुड से एक गेम प्लान शुरू करते हैं वेयर दे ऑक्यूपाइड द स्पेसेस विच आर एम्प्टी. एंड even if it's a center back going to the center forward position, it doesn't matter because वही Inzaghi ball है ना भाई. So you expected PSG to come, which they did. You expected Inter Milan to be okay, which they were, but only for the first 9 minutes. उसके बाद you can call it a lapse of judgment, but Hakimi getting the crucial first goal भाई. विटीनिया का simple pass डेजिरे डुए के लिए, who played an assist for Hakimi the right wing back, and boom भाई it was 1-0 and the floodgate started भाई. फिर भाई 20वें मिनट पे 2-0. You genuinely thought कि भाई अभी जिस हिसाब से इंटर मिलान, they never give up, they always find a way, they would do something, but tactically outlast by Luis Enrique and ऑल द प्लेयर्स भाई. तुम इंटेंसिटी देखो थ्रू आउट द गेम पीएसजी के हर एक प्लेयर की भाई. अगर बॉल कॉर्नर पोस्ट पे भी हो ना तो भी दो प्लेयर आके चढ़ रहे हैं. दैट इज द लेवल ऑफ प्रेशर, द इंटेंसिटी पीएसजी के स्क्वाड ने अप्लाई किया एंड दे गॉट ऑल द रिजल्ट्स आउट ऑफ इट. दे ऑब्वियसली हैड अ ब्यूटिफुल मिडफील्ड थ्री भाई. चाहे तुम फैबियन रूइस की बात करो, चाहे तुम शॉ नेवेस की बात करो, तुम विटीनिया की बात करो, वो तो थे ही भाई. बट उसके ऊपर भाई द अनसंग हीरो तो नहीं बोल सकते, बट व्हाट अ परफॉर्मेंस टू अनाउंस योर सेल्फ एट द वर्ल्ड स्टेज भाई. 19 साल का डेजिरे डुए, तबाही भाई, तबाही परफॉर्मेंस. वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टारडम भाई, यही कहूँगा मैं डेजिरे डुए को भाई. 19 साल में ना, ये मैंने रील भी बनाई थी वैसे, 19 साल में ना मैं अपनी मम्मी के पर्स से 10 रुपये चुरा के कुरकुरे खाता था भाई, और ये यहाँ पे एब्स बना के तबाही मचा रहा है. स्कोरिंग अ ब्रेस, असिस्टिंग वंस, द मैन ऑफ द मैच डेजिरे डुए. वाओ
वाओ भाई, पहला गोल अच्छा था डुए का, बट सेकंड वाला एब्सोल्युटली तबाही भाई. एंड ऑफ कोर्स भाई, मतलब this is, you want your best players to step up at the moment bhai. Come at the moment, come at the man, and today Desiree Doué was the man. But उस्मान डेम्बेले भी पीछे नहीं रहा भाई. आई नो उसका कुछ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था. ही ऑब्वियसली गॉट दैट पास फॉर डुएस फर्स्ट गोल एंड पीएसजी सेकंड गोल, बट 2-3 मोमेंट ऑफ मैजिक्स उसने दिए भाई हमारे को. एंड ही हैड अ वंडरफुल परफॉर्मेंस भाई. इज ही द बेस्ट कंटेंडर राइट नाउ टू विन द बैलेंडोर? ये तुम मेरे को बताओ राइट नाउ. देखो, बैलेंडोर का कंटेंशन हैपन्स ऑन टू थिंग्स भाई. ऑफ कोर्स पीआर एंड ये सब तो होता ही है, बट इट हैपन्स ऑन व्हाट इज योर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एज वेल एज वो परफॉर्मेंस ने क्या जिताया आपको. यहाँ पे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से फ्रॉम नवंबर ऑनवर्ड्स उस्मान डेम्बेले की तबाही है भाई. और क्या जिताया है? सब कुछ भाई, लिटरली सब कुछ जिता दिया. दे वन द ट्रेबल यार. They won the treble, obviously winning the Champions League for the first time. Inter Milan 3 बार जीत चुकी थी पहले, but they lost 2 finals in the last 3 years. And Ousmane Dembele could be considered as one of the top contenders for Ballon d'Or this season. देखो, अभी UEFA Nations League भी है और FIFA Club World Cup भी है, so that might or might not affect the overall, I would say, voting criteria for Ballon d'Or. और मेरे को लगता भी नहीं हर बार fair results निकलते हैं, but the point is, अभी मेरे को एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम देर इज नो बेटर कंटेंडर एटलीस्ट फॉर मी than Ousmane Dembele. Of course, you can think about Lamine Yamal, you can think about Pedri, Rafinha, ये सब हैं कंटेंशन में, बट ट्रेबल जीत गया भाई बंदा, है ना. Cool. Let's focus our attention on one more guy भाई, which is Kvaradona यार. Khvicha Kvaratskhelia has literally completed the quadruple of trophies भाई. देखो, नापोली में था वो फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन एंड नापोली वन द इटालियन लीग सीरिया, है ना भाई. तो वो जीत गया वहाँ पे. एंड देन ही वन द ट्रेबल 3 ट्रॉफीज विद पीएसजी भाई. सो टेक्निकली ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल प्लेयर ऑफ द सीजन सो फार भाई. एंड मतलब बढ़िया भाई. आज भी उसने एक गोल मारा. ही मिस्ड 1 or 2 opportunities, but then he got that goal and announced himself at the world stage as well भाई. So Khvicha Kvaratskhelia was actually very very pivotal in shaping the course of PSG this season. तुम्हारे को भी पता है भाई, ग्रुप स्टेजेस में चैंपियंस लीग में भाई वो क्वालिफाई नहीं हो पा रहे थे भाई राउंड ऑफ 16 के प्लेऑफ्स के लिए, बट समहाउ दे फाउंड अ वे. एंड उसके बाद लुइस एनरिको को भी क्रेडिट देना चाहिए दैट द वे ही टर्न्ड अराउंड उस्मान डेम्बेले फ्रॉम से नवंबर ऑनवर्ड्स भाई. देयर इज नो लुकिंग बैक. इनफैक्ट नवंबर से पहले ही वाज स्टिल कंसिडर्ड एज अ प्लेयर हु इज नॉट रियलाइजिंग हिज पोटेंशियल. एंड आज हम बात कर रहे हैं कि उसको बैलन डोर दे दो, है ना. सो यू सी हाउ टाइट्स चेंज भाई. मतलब वो ही सीजन, बीच में एक स्विच एंड थिंग्स चेंज. ऑफ कोर्स क्विचा कमिंग इन जनवरी मेड अ ह्यूज इम्पैक्ट. अब बात करते हैं भाई किलियन एम्बापे की भाई. आई genuinely फील बैड फॉर किलियन एम्बापे because one of the reasons he wanted to shift from PSG to Real Madrid, of course he wanted, obviously he loved Real Madrid, but वो रोनाल्डो के footsteps पे भी करना चाह रहा था. But one of the biggest reasons was because he thought that the best place for him to win the Champions League was रियल मैड्रिड. और रियल मैड्रिड नहीं जीती एंड इस बार पीएसजी जीत गई. इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे चल के नहीं जीत सकता भाई. ऑफ कोर्स अभी ज़ाबी अलोंसो आ गया. आई एम श्योर ही हैज़ अ लॉट ऑफ ट्रॉफीज प्लान्ड इन द फ्यूचर, बट द फैक्ट स्टिल रिमेन्स, पीएसजी लास्ट सीजन छोड़ के गया, इस सीजन पीएसजी ट्रॉफी जीत गई. एंड मतलब अब तुम उसको चैम्पियंस लीग कर्स बोल दो, तुम उसको अनलकी बोल दो, जो बोलना है बोल दो, बट द फैक्ट स्टिल रिमेन्स कि भाई किलियन एम्बापे जब सो के उठेगा, या मतलब जब भी वो स्कोर देखेगा ना भाई, थोड़ा सा तो उसको प्राउड फील होगा कि उसकी पुरानी टीम जीत गई है, बट थोड़ा सा दुखी भी होगा कि साला मतलब वाई ऑलवेज मी, वो बालोटेली वाला, है ना भाई. ओवरऑल गुड मैच, एक्साइटिंग मैच. हम कभी देखते नहीं है इतने वन साइडेड फाइनल्स होते हुए. सो आई वॉज रियली हैप्पी एज अ न्यूट्रल. मेरा बस यही था कि भाई मैच एक्साइटिंग होना चाहिए, है ना भाई. ऐसी मैं म्यूनिक की जर्सी पहन के हर बार म्यूनिक में एक नया विनर होता है. एंड द स्ट्रीक कंटिन्यूड एंड PSG बिकेम द चैम्पियंस of Europe for the first time, and I'm pretty sure bhai this will lead to a lot of success for them in the future. In fact, FIFA Club World Cup, I think PSG are the favorites to win it because बाकी सारे क्लब में transitions, transfers ये सब चल रहा है. I think PSG looks like a very complete squad right now, and Marquinhos the captain, utmost respect, he was the only player to play this final who had lost the 2020 final against Bayern Munich, है ना भाई. सो वो भी चेंज हो गया. ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर मार्किनियोस, इमोशंस ऑल ओवर, एंड इट वाज अ गुड मैच यार.
बस इतना ही कहना था भाई। लाइक का बटन दबा देना, सब्सक्राइब कर देना मन करे तो। थैंक यू सो मच, लव यू। Bye, guys.